So let's start your snap interview for NMDC. As today you prepared the test on concrete and cement. So first of all, introduce yourself. Yes, sir. Good afternoon, sir. My name is Subhash Hansda. I am from Giridih, Jharkhand. I have done my BTech from BIT Sindri, Dhanbad. After which I was preparing for GATE, and through GATE marks, I got enrolled into MTech program in IIT Kharagpur in the specialization of structural engineering. Okay. So Subhash, NMDC is generally working in which area? Sorry, sir. NMDC generally working in which area? So it generally works in the extraction of iron ore, and that means it works to it has lot of iron ore mines through which it extract the iron ore, and then it further do refinery process of iron ore. Okay. So my first question to you, Subhash, if we have to find the Yes, sir. compressive strength of concrete, then how will you find? Which one test you will prefer? So Yes. first of all, if we have to do the compressive strength of concrete, first of all that we have to do is make a concrete sample, a suitable concrete sample, as per the specification given to us by the IS code, and uh, in that for the preparation part, we take the concrete, we do the mixing of concrete as per the specification of IS code. For example, if we have to prepare M20, the specification provided to us is that we have to provide like one in the ratio of 1:1.5:3 in the that is cement, sand, and aggregate in respectively. After that, uh, we have to do curing of the concrete sample. Like we have to put the concrete sample in the water for like 28 days, after which we will perform the compressive strength of the concrete in the compressive testing machine, from which we will get the we will apply the gradually apply the load on the concrete sample, and we will perform it uh, till the load on which the concrete will start to crack, and thus we will be able to understand the load and determine the load on which the fracture will crack will occur, and hence accordingly we can determine the stress on which it will fail, which will help us to determine the compressive strength of concrete. Okay. Now my few question. So what is the difference between the this sample and specimen? Both are same or they're different? What do you think? Such a specimen means a particular single entity, and sample we can term it as we can for a simple singular entity also we can use sample, but for generally if we are considering sample, we are majorly talking about the multiple entities that are present over there. But you said the single entity will also be a sample. Is it true? Yes, sir. So It can also be called a sample, okay, suppose if we single are entity. just considering a cube, we have one cube, right? So one cube means one specimen, and one cube also means one Yes, sample. Is yes. it okay? Yes, we can call it, but if we are considering multiple cubes, we cannot call it as a specimen, but we can call it a sample. Okay. And you said this is the proportions given in the IS code. Okay. So can you tell Yes, sir. me which one code is for the this testing of the compressive strength of concrete? Sir, IS 456/2000. IS 456/2000. So basically, this code is for what purpose? Is it testing for concrete or its purpose is somewhat different? What do you think? So both are mentioned in it. The specifications as well as the design part also, how to design various members of the structure. Okay, that is fine. Is it also there like how to test the concrete? That is kind of the testing of concrete.
Is this mentioned in its code? Yes, sir. I think it's yes. Have you gone through this code? Mm, This code is for the RCC work or PCC work? for RCC, sir. Then what is the code for the PCC work? Sir, not able to remember. Okay. Have you heard about this thing, pre-stressing concrete or pre-stressed Yes, sir. concrete? Yes, sir. So what is the difference between the normal RCC member and a pre-stressed concrete member? Any idea? Yes, sir. So, in uh, in RCC structure, what we generally do is that we introduce a reinforcement, which is primarily steel reinforcement, in order to increase the tensile strength of concrete. As we know that tensile strength of concrete is less, so in order to increase that, we generally provide reinforcement, which is generally called RCC. And in pre-stressed concrete, what we do is that it is also a type of we are introducing a reinforcement. But in that, what we do is that we have two modes of introducing the reinforcement. It can be pre-tensioned, or it can be post tensioned also, in which we our main aim for doing that is that we by doing such a process, we can increase the moment carrying capacity of the beam, which is relatively less in case of RCC. So that's why it's called pre-stressed concrete. That means we are providing the reinforcement in a pre-stressing condition. So you mean to say that this pre-stressing member having a less load carrying capacity as compared to RCC member? No, sir, it has more. It has more. Okay. It has more. Here, Suhas, you said you are just putting this sample in the water and testing after 28 days, right? I'm talking about this compressive Yes, sir. strength of concrete, right? So, Yes, sir. if we are putting the sample in the water for Hmm. 28 days, so we Hmm. have to change the water on the frequent interval, na? Isn't it this bad thing if we are keeping the sample in a stagnated water? Definitely, that might be not be good for us, or even strength will also be affected. Hmm. So, what do you think? And what should be the pH of the water? Can we use any type of water? No, sir. There is a certain range in which the pH should be. Uh, it should be in the range of 5.5 to 7.5. 5.5 to 7.5. 7.5. But code is saying the pH of water should not be less than 6. But this 5.5 is the less than 6. Okay. Hmm. 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 Do you know this IS 456-2000 is the Bible for the civil engineering? Yes, sir. Okay, and why we are testing the cube after 28 days? Why not on this 7 days, 14 days? So we can do the testing after 3 days, 7 days, as well as 28 days. But Mhm. primarily we perform after 28 days because the concrete is able to regain the 100% of strength that we want on after 28 days only. In like 3 days, it's able to gain 50% of its compressive strength, characteristic compressive strength, and on 7 days, like 70%, and on 28 days, it is able to gain 100% of its strength. Okay. So, Subhas, suppose this 28 days has been completed today, and we are now going to test this Q under CTM compression testing machine. So, on which phase you will apply the load from that machine, or any phase you can apply the load? What do you think? So any phase we can apply the load, because all the phase are having equal size, since the cube that we have taken is Hmm. 150 mm into 150 mm into 150 mm. So Hmm. we can apply on any phase. But code is not saying that one, Subhas. Code is saying we can't apply the loading on any phase. It gives some specification, like suppose we are just putting the concrete from here. Is it okay? Yes. All the sides of the this cube will be in contact with the mold. We have a mold now. We are putting the concrete Yes, in sir. the mold.
right? So code is saying apply the load on the face which is in contact with the mold. Don't apply the Yes. load on the face which is not in contact with the mold, because जब हम मोल्ड रिमूव Mm-hmm. करेंगे ना सुभाष यहाँ से, what will happen, Mm-hmm. तो जब मोल्ड हम हटाते हैं अगर प्रॉपरली ये हमारा लेयर में कॉम्पैक्टेड नहीं होगा, then there will be a formation of the voids. If voids are there, then definitely strength will be less. And if you are applying the load on that face where you are properly compacted the concrete, definitely voids will be all time minimum, the strength will be higher. But in reality that will not be the answer of the strength of this cube. Mm-hmm. Are you getting? So sir, I didn't some lagging was there, sir. देखो, हम उस फेस के ऊपर लोड अप्लाई करेंगे जो मोल्ड के कांटेक्ट में होगा, राइट? Mm-hmm. अब जब मैं मोल्ड हटाता हूँ ना यहाँ से सुभाष, ठीक Mm-hmm. है, ये मैंने मोल्ड हटाया, मैं 24 घंटे बाद ये मोल्ड हटा देता हूँ और क्यूब को मैं पानी में डाल देता हूँ जिनमें, तो यहाँ पे ना छोटे छोटे मुझे वाइड्स देखने को मिल सकते हैं, तो ये प्रॉपर्ली कॉम्पैक्टेड नहीं होगा, क्योंकि हम इसको 3 लेयर में फिल करते हैं और ईच लेयर को अच्छे से हम कॉम्पैक्ट करते हैं। कितनी लेयर में कॉम्पैक्ट करते हैं सुभाष? 3 layers. और ईच लेयर को हम टैम्प कर रहे हैं कितनी बार? 25 times. 25 टाइम्स। और मैं ये बोलता हूँ कि लगभग 95% स्टूडेंट यहाँ पे गलती करता है और आप भी इसमें फंस रहे हो। दिस 25 टाइम्स इज नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू ना। नाउ इफ यू गो थ्रू इन द आईएस कोड, सो लेट मी टेल यू, आईएस 516, आईएस जो 516 है, ये टेस्टिंग का कोड है कंक्रीट के लिए, आईएस 516। तो ये कोड बोलता है कि अगर आप कंक्रीट का जो क्यूब बनाए हो 150 बाई 150 बाई 150 साइज मोल्ड लेके, तो उस केस में आप उसको जो 3 लेयर में भरोगे, ईच लेयर को 35 टाइम्स आपने टैम्प करना है। 25 बार टैम्प नहीं करना, 35 बार टैम्प करना है। इट इज क्लियरली रिटन इन दिस कोड। अगर कंक्रीट बनाने में जो आप एग्रीगेट यूज किए हो, मैं कोर्स एग्रीगेट की बात कर रहा हूँ जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, अगर ये कोर्स एग्रीगेट 20 से छोटा साइज का होगा, तब आपने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर साइज क्यूब प्रीफर करना है, और उसे भी 3 लेयर में भरते हो और ईच लेयर को वहां पे आप 25 बार टैम्प करते हो, वहां पे 25 यहाँ पे आंसर होगा। आर यू गेटिंग? Yes sir, yes sir. अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे कि ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब है, ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? दे आर सेम और दे आर डिफरेंट? व्हाट डू यू थिंक? Compressive strength of concrete or compressive strength of concrete cube, what do you think, they are same or not? No sir, they are different because a compressive strength of concrete in case of cube and compressive strength of concrete in case of cylinder, both are different because there's a slenderness ratio No, which comes into picture. I'm not going with the cylinders. Was I'm just asking compressive strength of concrete cube and compressive strength of concrete, only concrete, not kind of cylinder. So they are same or they are different? What do you think? Are they same? The question is that. Achha, right now you are doing masters, was Yes sir. in which area? Structural engineering sir. Structural engineering. So can you tell me what is the difference between the load bearing structure and frame structure? Sorry sir. What is the difference between load bearing structure and frame structure? Are they same or they are different? What do you think? सुभाष आपसे इसी तरह के क्वेश्चन वो पूछेंगे वहां से, क्योंकि आपका जो यहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट वाला है ना, वो सिविल से कहीं भी मैच नहीं करता है। तो आप क्या कर रहे हो, जैसे वो टेस्टिंग के बारे में आपसे कुछ चीजें पूछ सकते हैं, राइट? तो प्रोबेबिलिटी इन तरह के क्वेश्चन की बहुत ज्यादा हाई है। अच्छा, आपने सीमेंट के ऊपर मुझे यहाँ पे टेस्टिंग करनी है और मुझे सीमेंट का भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है, तो पहले मुझे एक चीज बताओ कि जो सीमेंट का क्यूब होता है उसका साइज क्या होता है? मैं सीमेंट क्यूब की बात कर रहा हूँ। Sir, 70.6 mm into 70.6 mm into 70.6 mm. ओके राइट। तो इसमें ये मेरा सीमेंट ही होता है सारा या कुछ और भी यहाँ पे मटेरियल होता है इसके अंदर? सर सीमेंट रहेगा सर। और प्योर सीमेंट से आपने ये क्यूब बना भी दिया और आप सक्सेसफुल भी हो गए। सीमेंट सर वाटर प्रोवाइड करेंगे। डू यू नो सुभाष, अगर मैं खाली सीमेंट यूज करता हूँ क्यूब बनाने में और जब मैंने इसमें वाटर ऐड किया, देन देयर इज वन वर्ड दैट इज वी आर सेइंग इट द हाइड्रेशन। ठीक है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन स्टार्ट होगा, मतलब केमिकल रिएक्शन है जो सेटअप हो जाएगा पानी मिलाने के बाद।
तो इससे ना बहुत ज्यादा क्रैक्स डेवलप yes sir. होंगे अगर ये सीमेंट ही होगा, क्योंकि श्रिंक करेगा, बहुत ज्यादा अच्छा. क्रैक आएंगे। तो हम कभी भी प्योर सीमेंट से Yes sir, सीमेंट का yes. क्यूब नहीं बना सकते, इम्पॉसिबल है ये। इंडिया में तो नहीं बना रहे हैं, Hmm. फॉरेन में बना रहे होंगे, आई डोंट नो, बट इंडिया में नहीं बना रहे और ना ही बना पाते। इसमें सुभाष हम 1:3 का रेशियो लेके चलते हैं। एक पार्ट इसमें सीमेंट होता है और 3 पार्ट इसमें मेरा सैंड होता है। अच्छा. 1 पार्ट इज सीमेंट, 3 पार्ट इज सैंड। जस्ट होल्ड ऑन सुभाष, 1 मिनट। हेलो। हाँ सर. हाँ यस सुभाष, सॉरी फॉर होल्ड। ओके, आपने क्या तैयार किया है इसमें टेस्टिंग में, आप बताओ, मैं वहीं से पूछता हूँ। लेट मी चेक कि व्हाट यू प्रिपेयर्ड सुभाष। सर सीमेंट टेस्टिंग से ही पढ़े थे ज़्यादा. सीमेंट टेस्टिंग। अच्छा मुझे बताओ कि जो मेरा सीमेंट है, जिसे हम बात करते हैं कि मेरे पास ओपीसी है, तो इसके कितने ग्रेड यस होते हैं ओपीसी के? सर, एज पर कोड 3 ग्रेड्स है, 33, 43 एंड 53. अब देखो सुभाष, क्या आपको इनके कोड पता है? नहीं सर. तो सुभाष आप फंस जाओगे, जैसे आपने बोला ना एज पर कोड, वो पूछेंगे बच्चे आपसे कोड बताओ कौन सा है। और पहले इन अच्छा. तीनों ग्रेड के ना अलग अलग कोड थे, अभी जो 2022 में अमेंडमेंट हुआ है ना, ये तीनों को एक ही ग्रेड में रख दिया गया है, 33, 43 और 53 को। अच्छा. समझ रहे बात को? तो बहुत ज्यादा यस. स्मार्टली आपने आंसर करना है क्वेश्चन का। जैसे मान लो अगर आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि ओपीसी का आप ग्रेड बताओ, राइट, तो आप बोलो सर 33 ग्रेड है, 43 ग्रेड है, 53 ग्रेड है। अपने आप क्वेश्चन क्रिएट मत करना, राइट। अच्छा ये नंबर क्या शो करता है सुभाष? ये 33, 43, 53 सर क्या शो ये करता है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट. तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट. सीमेंट, सीमेंट क्यूब। आप ऐसा बोलो कि ये यहाँ पे सीमेंट सैंड का क्यूब है सर, जिसको मोटर भी बोलते हैं। ठीक है, एक मेरे पास अच्छा. सीमेंट सैंड का एक मोटर क्यूब बना हुआ है। मोटार नहीं बोलेंगे, मोटार में तो वो पाकिस्तान वाले जेंट गेम फेंक रहे हैं हिंदुस्तान के ऊपर, मोटार वहां पे। ठीक है, ये मोटर होता है, राइट। सीमेंट. तो ये ठीक है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को शो करता है। अच्छा कोई आइडिया है कि रेट ऑफ लोडिंग क्या होती है, किस रेट के हिसाब से ये लोड लगाया जाता है सीमेंट क्यूब और कंक्रीट क्यूब के ऊपर? नहीं? नहीं सर. चलिए कोई बात नहीं। मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ये 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के रेट से लगता है ये। ठीक है, नॉलेज के लिए। हम्म. अच्छा मुझे अच्छा. ना यहाँ पे फ्रेश कंक्रीट की, मेरे पास फ्रेश कंक्रीट है, मुझे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज चेक करनी है। तो आप मुझे बताओ कि आप कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो फ्रेश कंक्रीट की या ग्रीन कंक्रीट की? सर वर्केबिलिटी. ओके गुड। वर्केबिलिटी। सर हार्ड होने से पहले का बात है ना. यस यस राइट, वर्केबिलिटी इज राइट। वर्केबिलिटी. चलिए ठीक है, वर्केबिलिटी को कैसे मेजर करोगे ये बता दो आप सुभाष। सर स्लम कोन टेस्ट है, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट है, वीवी टेस्ट है. स्लम कोन टेस्ट है, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट और वीवी टेस्ट है। अच्छा ये जो स्लम कोन टेस्ट होता है, मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान भी कर देता हूँ, वो कुछ ऐसी शेप में होता है, राइट। यस सर. ठीक है, और इसकी जो डायमेंशन होती है ना, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वो टॉप डायमीटर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर होता है। 10, 20, 30 सर.
हाँ बॉटम 20 होता है और हाइट इसकी 30 सेंटीमीटर होती है, ऑल डायमेंशन आर इन द सेंटीमीटर। अब हम्म, मेरा ये क्वेश्चन है, ये जो मेरा फ्रस्टम शेप कोन है इसको कितनी लेयर में भरा जाता है एज पर द आईएस? सर 5 लेयर्स में। 5 लेयर में? यस सर। यार 4 लेयर तो हमने सुना था, कि 5 लेयर कहाँ से आएगी सुभाष? 5 लेयर नहीं होती है कभी भी। देखो अच्छा। पहले हम 4 लेयर में फिल कर रहे थे, आईएस 11 जो 99 है ना, 1199, ठीक है। कोड आप मत बोलो क्योंकि कोड बहुत सारे होंगे, कोड बोलने की जरूरत नहीं है। तो पहले ना ये 4 लेयर्स में भरा जा रहा था, लेकिन अभी जो रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है इसको भी हम 3 लेयर में भर रहे हैं अब, 3 लेयर्स। समझ बात को? अगर आप कुछ ऐसा यस। बोलते हो ना कि सर पहले इसको 4 लेयर में भर रहे हैं और अभी हम इसको 3 लेयर्स में भर रहे हैं, तो डेफिनेटली इससे आपका वेटेज बढ़ेगा। समझ रहे हो? क्यों आप कोड में जो अमेंडमेंट होते हैं यस। हो रहे हैं ना समय टू समय यस। में, आप उनको भी बहुत अच्छे से गो थ्रू कर रहे हो। समझ रहे हो बात को? हम्म। चलिए ठीक है। अब मान लो अगर मुझे यहाँ पे हाई वर्केबल वाला कंक्रीट चाहिए, जिसकी वर्केबिलिटी हाई हो, तो हाई वर्केबल कंक्रीट, तो स्लम्प का वैल्यू कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? सर स्लम का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए। और अगर मान लो मुझे पाइलिंग में कंक्रीट यूज करना है तो उसका स्लम्प कितना होना चाहिए? पाइलिंग। पाइलिंग वर्क, हाँ। सर नॉर्मली सारा आरसीसी वर्क के लिए 500 टू 100 सॉरी 50 टू 100 का स्लम्प होना चाहिए सभी वर्क के लिए? आरसीसी वर्किंग के लिए। मतलब सभी आरसीसी वर्क के लिए? हम्म। अगर मेरे पास एक हैवीली इन्फोर्स सेक्शन होगा, हैवीली इन्फोर्स सेक्शन होगा, अगर मैं यहाँ पे 50 से 100 का स्लम्प लेके चल रहा हूँ, तो माइट बी दैट इट इज नॉट एबल टू पास थ्रू द गैप बिटवीन द स्टील्स। हम्म। हम्म। अच्छा ये सेग्रीगेशन क्या होता है सुभाष? सेग्रीगेशन, नाम सुने हो सेग्रीगेशन का? यस सर। सेग्रीगेशन फिनोमिनन है जिसमें कि अ, अगर प्रॉपर वे से कंक्रीट को प्लेस नहीं किया जाए हम्म, तो उससे सेग्रीगेशन हो सकता है। तो मीन्स होता क्या है ये? जो उसका होमोजिनिटी, सर्टेन होमोजिनिटी जो हम लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं, सेग्रीगेशन हो जाने की वजह से वो जो करेक्ट प्रोपोर्शन में हम कंक्रीट चाहते हैं वो हर एक जगह पे नहीं पहुंच पाता, तो सेग्रीगेशन। अच्छा मुझे ना स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करनी है सीमेंट की, तो बताओ मैं कौन सा टेस्ट करूंगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट की? सिली चैटलियर फ्लास्क। वेरी गुड। ओके, और जनरली जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं तो हमारा जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है वो वाटर है, लेकिन सीमेंट के केस में क्या होता है? सब वाटर। वाटर होगा फिर तो रिएक्शन हो जाएगी बस। तो ये तो फिर यहाँ पे हाइड्रेशन प्रोसेस सेटअप हो जाएगा ना। वाटर हम यूज नहीं करते हैं सीमेंट में, कैरोसिन होता है यहाँ पे। कैरोसिन देखियो सुभाष, कैसा यस कलर सर। होता है इसका कैरोसिन का? ब्राउनिश, ब्राउनिश, ब्राउनिश येलो, डार्क ब्राउनिश येलो कह सकते हैं। ब्राउनिश होता है या नीला होता है, ब्लू होता है कैरोसिन? सर ब्राउनिश है, ब्लू, ब्लू नहीं जान रहे सर। अगर आप कभी गूगल पे सर्च करोगे ना और जो ली चटली फ्लास्क पाएगा ना, उसके नीचे आपको नीचे नीचे वो ब्लू वाला चीज दिखाएगा, तो कुछ नहीं, कैरोसिन ही होता है वो। अच्छा। राइट। तो हम कैरोसिन को इसलिए यूज कर रहे होते हैं क्योंकि ये यहाँ पे नॉन पोलर होता है, और वो जो वाटर होता है ना बच्चे, वो डाईपोलर होता है, H2O। जो अच्छा। वाटर है ना, ये डाईपोलर है, हाइड्रोजन हम्म। ऑक्सीजन, पॉजिटिव नेगेटिव। हम्म। जो केरोसिन होता है ना, ये नॉन पोलर होता है, और नॉन पोलर होने की वजह से इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता है इसके सीमेंट के साथ, पार्टिकल के साथ। हम्म। समझ रहे हो बात को? यस। यस ठीक है। आपका इंटरव्यू डेट कब है सुभाष? सर 4 सितंबर। 1 सितंबर है ना, अभी आपके टाइम में फोर्थ थोड़ा चीजों फोर्थ को। फोर्थ फोर्थ। सितंबर ठीक है, अभी टाइम है आपके पास। हम्म। तो चीजों को आप ना थोड़ा रिकॉल करो। देखो यही चीजें हम आपसे हम्म। पूछेंगे। जैसे मैंने आपसे बिल्कुल बेसिक पूछा कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आप कैसे चेक करोगे, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले मैं यहाँ पे कंक्रीट का क्यूब बनाऊंगा स्पेसिमन, और लेट मी टेल यू सुभाष, सैंपल एंड स्पेसिमन दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। एक सैंपल के अंदर 3 स्पेसिमन होते हैं,
अगर मैं एक सैंपल की बात करता हूँ ना, तो वन सैंपल कंसिडर द थ्री स्पेसिमेन। स्पेसिमेन बोल दो या क्यूब बोल दो, स्पेसिमेन और क्यूब एक ही मतलब है। लेकिन ऐसा नहीं होता कभी भी, अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे स्पेसिमेन ज्यादा है तो मैं उसको सैंपल बोल दूंगा, स्पेसिमेन कम है तो मैं इसको सैंपल बोल दूंगा, नहीं ऐसा नहीं। एक सैंपल के अंदर तीन क्यूब फिक्स है, मतलब थ्री स्पेसिमेन आर देयर। तो सैंपल इज अ सेट ऑफ द स्पेसिमेन। ओके, तो ये ध्यान रखना आपने। और जो कोड है बच्चे, ये जो IS 456 2000 है, देखो ये 2000 है, अभी तो 2000। अच्छा सर, ये अगर सिंगल स्पेसिमेन है तो उसको सैंपल बोल सकते हैं कि नहीं सर? नहीं नहीं नहीं, वो क्यूब है, हमेशा क्यूब है वो। अच्छा। सैंपल में अंडरस्टूड है कि सैंपल में सैंपल का तीन मतलब? क्यूब होंगे होंगे। अच्छा। हम्म। तो उससे कम या ज्यादा हो गया तो फिर उसको सैंपल नहीं कहेंगे? नहीं, तीन से कम होंगे तो सैंपल नहीं है। अगर तीन से ज्यादा है तो, अगर दो सैंपल होंगे तो अंडरस्टूड है वो छह क्यूब है या सिक्स स्पेसिमन है। अगर मान लो आपके अच्छा। पास यहाँ पे 30 सैंपल्स है तो 90 क्यूब है वो, या 90 90। स्पेसिमन है। अच्छा अच्छा। क्योंकि तीन के ओके। मल्टीपल में होता है ना ये। राइट, अब देखो हम्म, ये कोड जो ठीक है। हमारा है 2000 में, अभी तो चला है 2023 भी एंड होने वाला है सुभाष। तो लगभग यहाँ पे भी हम्म, 23 साल कंप्लीट हो जाएंगे, हम इतना पुराना कोड तो यूज नहीं कर सकते, तो टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होती रहती है कोर्स के अंदर। राइट, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि यस कब सर। अमेंडमेंट हो रहा है। तो थोड़ा ये मतलब एक तरह से ये वो चेक करेंगे कि आप कितना अलर्ट रहते हो जब आप चीजों को स्टडी करते हो। राइट, तो बच्चे दोनों का कोड होता है, ये आरसीसी और पीसीसी और दोनों का यही कोड है। अच्छा। जो आपका IS 456 है, दिस इज कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर बोथ। मैं आपको ये शेयर कर दूंगा सुबह एज इट इज। ये अच्छा। मैं आपको PDF एज इट इज व्हाट्सएप पे ही शेयर कर दूंगा, घबराओ मत, आप देखते रहो सुनते रहो। तो ये दोनों का कोड है ये, आरसीसी का भी और पीसीसी का भी है। राइट, और प्री स्ट्रेस कंक्रीट वर्क दैट यू टोल्ड यस। दैट वाज ओके, IS इसका जो कोड होता है वो IS 1343 होता है। ये कोड है इसका, प्री हम्म। स्ट्रेसिंग। ठीक है, पीएच ऑफ वाटर कोड बोलता है, IS 456 में लिखा हुआ है सुभाष, कोड बोलता है कि पीएच ऑफ वाटर शुड नॉट बी लेस देन 6। पीएच ऑफ वाटर हम्म। शुड नॉट बी लेस देन 6, 6 से कम नहीं होना चाहिए। तो बोलने मतलब क्या है, हम एसिडिक वाटर तो कभी अलाउ नहीं कर रहे, हम अल्कलाइन या बेसिक हम्म, वाटर की तरफ जा रहे हैं। तो 5.5 गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ये भी बोलते हैं ना कि सर ये 7 से लेके 8.5 या 7 से थोड़ी ऊपर ही वैल्यू होती है, तब भी वो थोड़ा सा आपका आंसर सही है। हम्म। सर, कम कम इसलिए नहीं होगा कि उससे अगर एसिडिक वाटर रहेगा तो रिइंफोर्समेंट में कोरोजन करा सकता है। क्रोजन भी और भी बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, एग्रीगेट्स के ऊपर रिएक्शन होगा, एल्कली का रिएक्शन होगा, बहुत सारी चीजें हैं इस पास। अच्छा। ओके, और ये मैंने आपको क्यूब का मैंने आपको बता ही दिया है। राइट, हम्म। अच्छा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आर दी सेम और नॉट? देखो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ, और मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि मोर देन 90% जो जनता है ना वो यहाँ पे फंस जाती है क्वेश्चन के अंदर। देखो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब की जब हम बात करते हैं ना, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंक्रीट का क्यूब बना रहा हूँ, उसको CTM में टेस्ट कर रहा हूँ, और जिस भी लोड पे ये फेल होगी, दैट लोड डिवाइडेड बाय दिस 150/150, वो उसका स्ट्रेंथ आ जाएगा। और इसी में ना हम्म। एक टर्म और डिफाइन की जाती है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब, जिसको हम FCK से डिनोट करते हैं। तो ये ध्यान से सुन लेना हम्म। कि आपसे क्या पूछ रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम डिफाइन करते हैं कि स्ट्रेंथ की वो वैल्यू जिसके नीचे रिजल्ट आने के 5% चांसेस, हम्म। और जिसके ऊपर रिजल्ट आने के मिनिमम 95% चांसेस। इससे ज्यादा आ सकते हैं हम्म। क्यों, पास हो सकते हैं, लेकिन 5% से ज्यादा यहाँ पे क्यों फेल नहीं हो सकते, मैक्सिमम 5% है। तो मैंने क्यू टेस्ट किया। अच्छा, अगर आपसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट वो पूछ रहा है ना, अब देखो तुम क्यूब का डायमेंशन 150 बाई 150 बाई 150 जो स्टैंडर्ड है, लेकिन एक्चुअल साइज हम्म। ऑफ मेंबर विल नॉट बी 150/150/150 mm। और बच्चे जो हम हम्म। CTM में लोडिंग पे लगाते हैं ना, वो एक यूनी एक्सियल हम्म। कंप्रेशन होता है। यूनी एक्सियल हम्म। कंप्रेशन बोले मतलब इसकी एक एक्सिस के अलोंग ही आप यहाँ पे कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लगा रहे हो, लेकिन हम्म। रियलिटी में तो यूनी एक्सियल कंप्रेसिव नेचर का लोड होगा ही नहीं। तो कोड बोलता है कि हम्म। इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए मैं अपना जो उसमें कंक्रीट बेंडिंग क्यूब भी है, आएगा ना सर? हाँ उसमें, हाँ बेंडिंग भी होगा, बीम होगा तो बेंडिंग भी होगा, लोडिंग कुछ भी हो सकती है। हम्म। तो मैं अपनी कंक्रीट क्यूब की जो स्ट्रेंथ है वो 33% गिरा देता हूँ, और कौन सी स्ट्रेंथ, फिर हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के साथ चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने कभी पढ़ा है, ऐसा कहीं देखा होगा, तो 0.67 FCK इज नथिंग बट दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। हम्म। तो अगर आपसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पूछ रहा है ना, तो आप बोलो कि सर इन होल साइंस में मैं बोलूंगा कि जो इसकी स्ट्रेंथ आएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं साइज इफेक्ट कंसीडर करूंगा, स्लेंडरनेस इफेक्ट कंसीडर करूंगा, लोडिंग कंडीशन कंसीडर करूंगा, तो ये कम ही होगा सर, ये ज्यादा नहीं हो सकता क्यूब के कंपेरिजन में। क्योंकि ये छोटा सा क्यूब बना रहे हैं, हम्म। उसमें क्वालिटी कंट्रोल अच्छा होगा, और बड़ा हमारे पास कुछ सेक्शन होगा उसमें क्वालिटी कंट्रोल आपका डाउन होगा। और जनरली सुबह से इंजीनियरिंग में ना एक क्वालिटी हम्म। कंट्रोल का अलग से ही विषय होता है। हम्म। ठीक है, तो जैसे मटेरियल मैनेजमेंट का बोस है ना, वो थोड़ा चीजें चेक करना चाहेंगे आपसे, तो एग्जैक्ट तो वो नहीं पूछेंगे, जैसे मैंने आपसे पूछा और कि सर यहाँ इसमें पे। डिजाइन स्ट्रेंथ 0.45 से क्या हो जाएगा? हाँ, यस यस यस, हम्म। समझ रहे बात को। यस सर। तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि लोड बीरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर क्या है, तो आप बोलो कि सर लोड बीरिंग स्ट्रक्चर में जनरली जो लोड होता है ना, जैसे हमारा स्लैब है, ये छत है कंक्रीट से बना हम्म। हुआ, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे वॉल्स के ऊपर रेस्ट कर रहा है, जो ब्रिक मेसनरी वॉल है।
अब लोड हम्म जितना भी होगा ये वॉल से होता हुआ मेरी फाउंडेशन में जा रहा है और अल्टीमेटली फाउंडेशन से मेरा हम्म मिट्टी में चला जा रहा है। लेकिन सर फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो स्लैब होती है वो पहले बीम के ऊपर रेस्ट करती है। बीम से लोड ये जाएगा, स्लैब का लोड बीम में जाएगा, बीम से लोड ये जाएगा कॉलम में। और कॉलम जो हम्म होता है वो फुटिंग या फाउंडेशन के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है, तो उससे जो लोड होगा मेरी वो फुटिंग या फाउंडेशन पे ट्रांसफर होगा। फुटिंग और फाउंडेशन सॉइल पे रेस्ट करती है, फिर वो हम्म सॉइल में ट्रांसफर। तो मतलब जब भी मैं बोलूंगा कि अरेंजमेंट ऑफ बीम एंड कॉलम है तो फ्रेम स्ट्रक्चर है, और जब भी कोई बीम और कॉलम आपने नहीं दिया है, स्लैब डायरेक्टली आपके पास दीवारों के ऊपर रेस्ट कर रही है जो लोड बीरिंग वॉल्स होती हैं, तो स्ट्रक्चर आपका लोड बीरिंग स्ट्रक्चर होता है। हम्म क्योंकि वॉल तो पार्टीशन वॉल और कैविटी वॉल भी होती है ना हमारे पास। तो सर समझ रहे हो लोड आप? बियरिंग स्ट्रक्चर में वॉल के पर्सपेक्टिव से बोल देंगे कि हम्म। जैसे वॉल भी एक लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन वॉल एक फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं है, हाँ नहीं, आप ऐसे बोलो कि सर या लोड फिर बेरिंग स्ट्रक्चर में जो स्लैब होती है जितना भी लोड होगा वो वॉल्स के थ्रू होता हुआ नीचे फाउंडेशन में चला जाएगा। लेकिन फ्रेम स्ट्रक्चर में जो लोड होता है वो अच्छा। बीम कॉलम और फुटिंग, फुटिंग तो यहाँ पे भी होगा, फाउंडेशन यहाँ पे भी होगा। तो बीम कॉलम का जंक्शन होता है, इससे हुँ, लोड ट्रांसफर होता है, फाउंडेशन में जाती है। जबकि लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता सर। दैट्स इट। अभी जहाँ पे आप रह रहे हो घर में हो तो ध्यान रखना, अगर कोई भी कॉलम नहीं होगा ना तो डेफिनेटली बच्चे ये लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है। हुँ, अगर कॉलम दिया होगा, कॉलम के साथ हुँ, बीम हुँ, जरूर लगे होंगे, तो ये फ्रेम स्ट्रक्चर होगा। अच्छा। राइट। और बाकी मैंने यहाँ हुँ। पे आपको चीजें बता ही दी है। सर तो मान लिया अगर कॉलम और वॉल दोनों है, तो चूँकि कॉलम है तो कॉलम बीम वगैरह है तो हम उसको फ्रेम स्ट्रक्चर ही बोलेंगे। हम्म। अब वॉल तो होगी अगर होगी ना, मानो आपने कॉलम दिया, बीम दिया, स्लैब दिया। अब दीवार तो लगानी पड़ेगी ना। और बाहर वाली हुँ, जो दीवार होती हैं, आउटर जो वॉल्स होती हैं, वो हमेशा ही हुँ, थिकर होती हैं, क्योंकि हमें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना पड़ता है उनको। और अंदर वाली वॉल्स आप यस है, यस है। बिल्कुल थिन भी कर सकते हो। हुँ, हुँ, राइट। तो यस एनीथिंग सर। एल्स वास यू वांट टू आस्क? सर और ये कोड वगैरह का सर कैसे देखना है, मतलब कि कितने कोड वगैरह पढ़ने हैं या फिर? नहीं नहीं, जैसे आरसीसी का आपने ध्यान रखो कि आरसीसी का IS 456 है, पीसीसी का IS 456 है। कंक्रीट के ऊपर जो टेस्टिंग करोगे ना उसका कौन सा कोड है, जैसे IS 516 है। ठीक है। हुँ, मतलब एक दो कोड का आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए जो फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। जैसे सीमेंट का टेस्टिंग करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुबह सीमेंट का टेस्टिंग है, ब्रिक का टेस्टिंग है। ठीक है कि ब्रिक का वजन कितना होता है, इफ्लोरोसेंस क्या होता है, ब्रिक में रेड कलर जो आता है वो किस कारण से आता है। क्योंकि गवर्नमेंट बिल्डिंग में कॉमन सी प्रैक्टिस है ये, और कॉमन सा एक इशू है, नॉट प्रैक्टिस, कि बहुत ज्यादा वो व्हाइट हुँ, पैचेस देखने को मिलते हैं ना। दैट इज हुँ, हुँ, इफ्लोरोसेंस। और आपसे पूछ सकते हैं कि आप सिविल इंजीनियर हो, अपने वैल्यूबल फीडबैक दो, आप कैसे इसको यहाँ पे एलिमिनेट करोगे। तो ये कंडीशनल हुँ, क्वेश्चन रहेंगे सुभाष आपके लिए। तो वहां अच्छा। पे क्या होगा ना बच्चे, वहां पे ओवरऑल आपका वो नॉलेज चेक करेंगे, सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछेंगे। और अपना जो उनका डोमेन होगा ना उसमें भी वो क्वेश्चन आपसे करेंगे। मटेरियल मैनेजमेंट का? हम्म। हुँ, सो तो एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? मटेरियल मैनेजमेंट में सर क्या-क्या चीज़ को सब तब देखना होगा? देखो ये आपको विजेंद्र सर बताएंगे। जो आपके विजेंद्र अच्छा, सर अच्छा। मेंटर हैं वो आपको बताएंगे कि हुँ, इसमें आपने क्या क्या चीजें पढ़नी है। अच्छा। राइट। टेक्निकली आई कैन गाइड यू। क्या सर? टेक्निकली जो क्वेश्चन वहां पे रहेंगे ना, दैट आई कैन टेल यू। ओके। हुँ, इसके अच्छा। अलावा और सर ये जो टेक्निकल में है तो सर ज़्यादातर यही आरसीसी और स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स को ही ध्यान देना है या फिर हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन वगैरह से भी पूछ सकते हैं? देखो पहले तो आप मेजरली, क्योंकि आपका जो ये मटेरियल मैनेजमेंट वाला है, तो आप जैसे मटेरियल के ऊपर पहले फोकस करो। ये पता होना चाहिए आपको सुभाष। बहुत ज्यादा आपको प्रोसीजर नहीं पता है, कोई इशू नहीं है। कि जो हमारा ये जो स्लम्प टेस्ट है कि इसको हम 3 लेयर में भर रहे हैं, 4 लेयर नहीं भी पता है। अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ, हुँ, 5 लेयर बोलोगे तो गलत ही है। कि 4 लेयर में, अगर आपको ये नहीं पता कि अमेंडमेंट अभी हुआ है उसमें 3 लेयर, तो कोई बड़ी बात नहीं है वो। राइट। क्योंकि आपका जो यहाँ पे कोर है वो सिविल है, और यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है कुछ और ही है। राइट। तो हुँ, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, जैसे आपने सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए टेस्ट बताया, लीच एटलियर फ्लास्क है। हुँ, ठीक है। तो इसमें कौन सा हम फ्लूइड यूज कर लेते हैं ये पता होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे एक नॉन पोलराइजिंग लिक्विड यूज करेंगे। अब नॉन पोलराइजिंग लिक्विड आपका कैरोसिन भी हो सकता है, कोई दूसरा और लिक्विड ले लो जो नॉन पोलर हो। हुँ, समझ रहे हो बात को? यस सर। हुँ, तो सर मतलब सबसे पहले मटेरियल्स को खत्म करना है जितने मटेरियल्स हैं और उसमें हम्म। टेस्ट वगैरह सबको अच्छे से कोर्स में जो कितने टाइम के लिए करते हैं या फिर उसका डायमेंशन क्या है, कितने लेयर में भरते हैं, हाँ, वो सब उनका चीज़ को पर्पस, अच्छे से सबसे पहले फोकस करें। पर्पस। सुबह हाँ, सबसे पहले पर्पस। पर्पस टेस्ट करने का पर्पस क्या है, और किन कंडीशन में हुँ, आप ये टेस्ट करोगे, और क्या ये जो हुँ, टेस्ट के रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा रिलायबल हैं या कम रिलायबल है, जैसे क्यूब और हुँ, सिलेंडर। समझो बात को? अच्छा, हाँ, इस तरह के यस क्वेश्चंस सर। बनेंगे। ओके देन सुभाष। अच्छा, अच्छा। और सर ये तो मतलब पहले सारे स्ट्रक्चर सब्जेक्ट्स ही खत्म करें, मतलब आरसीसी, सोम
स्ट्रक्चर, बिल्डिंग मटेरियल्स, फिर वो ट्रांसपोर्टेशन सर, वो सबको अभी उतना नहीं ध्यान दें कि मतलब कैसे उस सबका नहीं देखो, अप्रोच रखें। सुबह सबसे पहले आप सॉइल के ऊपर टेस्टिंग, कंक्रीट के ऊपर हुँ, टेस्टिंग, सीमेंट के ऊपर टेस्टिंग, जैसे आपने टेस्टिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद आप यहाँ पे सोम और एफएम का बेसिक कर लो। जैसे मान लो आपको उसने कोई बीम दे दिया कि मान लो ये मेरे पास फिक्स्ड बीम है हुँ, और इसके ऊपर पॉइंट लोड लग रहा है, बताओ इसमें कितने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर होंगे, वो आपसे पूछेंगे डायरेक्टली, हुँ, दे हुँ, कैन आस्क यू। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनता है। हुँ, समझ रहे हो बात को? क्योंकि जब तक आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की शेप पता यस नहीं सर। होगी, आप नहीं बता सकते पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कितने हैं। तो फिर आप उस हुँ, डायरेक्शन में मूव करो, पहले ये जो आपका बेसिक क्राइटेरिया है ना उसको फुलफिल करो, राइट। और ये मैं आपको बाद में बताऊंगा वन बाय वन, अच्छा। राइट, कि कौन सा टेस्ट किस पर्पस के लिए है, और कौन सा टेस्ट अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इंडिया में कौन कौन से टेस्ट किए जा रहे हैं, अगर मैं कोई टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूँ सॉइल के ऊपर, तो इससे मुझे कौन कौन से पैरामीटर मिलेंगे, राइट। अच्छा, गो थ्रू दैट। ठीक है सर। अच्छा, ठीक है ओके सर। सर।